I could have. Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the All India Bar Examination AIBE 20, which was held in December 2025. So let's move on to the questions. Question number 1 is, in which of the following cases the Supreme Court of India held that the preamble is not part of the constitution? ये जो इन री केरला एजुकेशन बिल है, इसमें हेल्ड किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट की स्टेट कैन नॉट टेक ओवर दी माइनॉरिटी रन और एडेड स्कूल्स. ठीक है. फिर है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सब जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर. फिर ये था इन री बेरुबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स AIA 1960. इसमें हेल्ड किया गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें जो है कुछ एरिया इंडिया का जो है पाकिस्तान को दिया गया था और वहाँ से कुछ एरिया जो है लिए गए थे. तो ये बेरुबरी यूनियन जो है एक स्टेट थी पहले. ठीक है ना. तो सी इसमें आंसर है. मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो है चैलेंज किया गया था ऑफ द 42nd अमेंडमेंट, इसको अपहेल्ड किया गया बात. ठीक है. सी इसमें आंसर है. Next is 2. Which article in the Constitution of India relates to the subject matter of laws made by Parliament to give effect to the treaties and international agreements? 249, 251, 253 या 255? 249 किसके लिए है? ये है for legislations. ये है to legislate on the matters in state list in national interest. Okay. 251 is if there is any inconsistency between legislature made by central government or state government, तो किसका प्रिवेल करेगा? Obviously law made by the parliament. इस क्वेश्चन में आंसर है सी 253. सी इज द आंसर. 255 क्या है? रिक्वायरमेंट एज टू रिकमेंड एन प्रीवियस सैंक्शन to be regarded as a matter of prudence. Next is 3. In which of the following judgments was the issue of right to privacy dealt by the Supreme Court of India? खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये जो आया था, ये पुलिस जो अचानक से सडन नाइट विजिट्स कर देती नहीं, किसी की भी घर में धमकती है ना, मिसयूज़ किया था काफ़ी पुलिस ने. तो ये फिर केस आया था, बोलते भाई हमें खबर मिली थी वहाँ पर, है ना, सीक्रेट पिक्टिंग बाय यूपी पुलिस, तो उस पर केस आई है. PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, टेलीफोन टेपिंग इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ये बोला गया था. और इसमें भी राइट टू प्राइवेसी, खड़क सिंह में राइट टू प्राइवेसी जो है उसमें उसको हेल्ड किया गया था कि भाई ये सब बंद होना चाहिए, है ना. फिर जस्टिस KS पुत्तुस्वामी, तो लैंडमार्क जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी पर, इज अ फंडामेंटल राइट. MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र, इसमें चैलेंज की गई थी पावर ऑफ पुलिस फॉर सर्च एंड सीजर. इसमें इन्होंने चैलेंज किया था कि ये जो पावर्स हैं ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं. तो चारों ही हैं, 1 2 3 4. डी इज द आंसर. Next is 4. Which of the following actions is required if territory is ceded to any other country by Union of India? Executive action of Union of India? No. Presidential proclamation? नहीं. Executive action of Union of India and legislative enactment? या फिर legislative enactment by the parliament and then executive action of Union of India? ये ठीक है. D is the answer. और ये जो है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग ही होता है. एंड ये कहाँ डिसाइड किया गया था ये चीज़? ये थी इन री बेरुबारी यूनियन. केस जो है ना, पढ़ेंगे आप, पता लग जाएगा आपको इसके बारे में. ठीक है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट तो इसमें होना ही चाहिए, उसके बाद एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा. Next is 5. The President has preferred a question to the Supreme Court and Supreme Court, as per Article 143 of the Constitution of India, has advised the
president accordingly. Can the advice given by the Supreme Court be considered as a judicial precedent? वो नहीं होता है, no, because it is only considered as judgment. It is not considered as judgment, या फिर because it is considered, no, because it is not pronounced in open court. No, A is the answer. Exercise 6. In a criminal trial of defamation, the trial court, that is High Court, has restrained publication of any news on the given case. Which of the following constitutional power has been exercised by the High Court while passing the order? Power to issue writ of mandamus या फिर issue writ of prohibition, inherent power, residuary power. It is an inherent power. C is the answer. Exercise 7. Supreme Court of India has declared that right to information is a fundamental right of every citizen of India. Which of the following cases stated provision is used as source of fundamental right given by the Supreme Court? अब इसमें से आर्टिकल 19(1) बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आरटीआई एक्ट, 19(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर 19(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आरटीआई एक्ट कलेक्टिवली, ये है 19(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है फंडामेंटल राइट है। सी इज द आंसर। केस कौन से हैं? सबसे पहला केस कौन सा आया था? ये आया था बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1972 की जजमेंट है। फिर ये स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण का केस है, ऑलराइट। फिर एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, राजनारायण वाला आया था 1975 में। ये सब जो है इसी पर हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एज ए फंडामेंटल राइट पर। सी इज द आंसर। Exercise 8. Which of the following schedule of the Constitution of India deals with the subject matter of validation of certain acts and regulation? Schedule 9 यही है जी, ए इसमें आंसर हो गया। Schedule 3 क्या है? Oaths and affirmations, ठीक है जी। Schedule 5 क्या है? ये protection of scheduled areas and scheduled tribes है। Schedule 10 क्या है? Defection। This is 9. Consider the following statement regarding Article 32 of the Constitution of India. The article is silent about the locus standi about who may approach the Supreme Court. The article is silent about the opposite party against whom the relief under Article 32 may be granted. Article creates room for every sixth type of writ within its scope. All are true हैं, सब ठीक हैं, तो D इसमें आंसर होगा। All statements are true. Exercise 10. By virtue of Article 129 and 215 of the Supreme Court of India and the High Court in the states are the court of record and possess contempt jurisdiction. What is true about the lower judiciary in the same connection? Lower judiciary has to bear with the contempt, ये तो होता ही है जी। Lower judiciary has to complain about its contempt to Supreme Court of India, या फिर can itself punish the contemptor for having caused its contempt? No, ये नहीं कर सकते। Respective High Court can take up the matter of such a contempt under whose jurisdiction the lower court falls. तो लोअर कोर्ट को जो है पहले ऑर्डर करके जो है हाई कोर्ट को भेजना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट मैटर को देखता है। तो डी इसमें आंसर रहेगा। और ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में, इसलिए तो बनाया गया था। ये 1971 का एक्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, इसीलिए तो है लोअर जुडिशरी के लिए, अदरवाइज क्यों रहेगा? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास तो ऑलरेडी पावर है इन आर्टिकल्स में। Exercise 11. Given below assertion and reason, assertion है a monument can be introduced only in the house of people and not in council of states, बिल्कुल ठीक है जी। कहाँ मेंशन किया हुआ है? इन आर्टिकल 117 में। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स may make recommendation on the money bill within 14 days, but the house of people may accept reject them. In either case, the bill is deemed to be passed. ये जी बिल्कुल ठीक है जी, तो करेक्ट है ये, बोथ आर करेक्ट। Correct explanation, A is the answer. This is 12. Supreme Court of India in R.K. Anand versus Registrar Delhi High Court. क्या केस था ये? Delhi High Court held an advocate guilty for misconduct for
13 जजेस या फिर फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट या इंटरफेयरिंग इन द क्रिमिनल ट्रायल बाय अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस द विटनेस। इस जो ये अरकान वाज एन एडवोकेट, बहुत सारी लिमिट्स क्रॉस करी थी, विटनेसेस को टेम्पर करने के लिए डराया धमकाया, पता नहीं क्या क्या कुछ किया था। इनको फिर फाइन भरने के लिए बोला गया था, 21 लाख रुपीज़ फाइन, फिर कम्युनिटी सर्विस एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इन पे इम्पोज करी थी फिर। तो सी इसमें आंसर है। दिस इज 13। Addition है, the president has the power to grant pardons, reply, respite or remission of punishment or to suspend, remit, commute any person convicted on offense in cases where the punishment is by court martial or where sentence is death। हाँ ठीक है, कहाँ पर आर्टिकल है ये? आर्टिकल 72। द पावर ऑफ आर्टिकल 72 ओवरराइड्स एंड कंप्लीटली नलिफाइज द पावर ऑफ गवर्नर टू कम्यूट। नहीं, ऐसा नहीं है, गवर्नर की अपनी पावर्स हैं। और गवर्नर की पावर कहाँ लिखी हुई है? इन आर्टिकल 161। तो फिर ये क्या ठीक हुआ ना? आर गलत हो गया ना, तो ए इज टू आर इज फॉल्स, सी इज द आंसर। This is 14. As per the Constitution of India, after the 86th constitutional amendment, which directive principle was modified to ensure early childhood care education below the age of 6? That was Article 39, 41, 47, 45. It was 45. D is the answer. Next is 15. Under which provision of Indian Constitution can a public interest litigation be filed directly to the Supreme Court? किसमें करते हैं? Obviously 32 में। B is the answer. Next 16. As per the Constitution of India, a linguistic community in India seeks to preserve its unique script and literature. Which constitutional provision guarantees them the right to conserve the same? 28(1), Article 29(1), 30, 32. It is 29(1). B is the answer. This is 17. Which article of the Constitution of India lays down the fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment? और देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पर है? आर्टिकल 51A में। तो दो ऑप्शन है 51A के। 48 क्या है? दिस इज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट, दिस इज अ DPSP, तो ये नहीं होगा। 39A क्या है? फ्री लीगल एड। 51AG, दिस इज द आंसर, सी इज द आंसर। 51AB क्या है? चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल वाला, मानो कभी आ जाए तो। This is 18. Which of the following public interest litigation expanded Article 21 of the Indian Constitution to include right to enjoyment of pollution-free water and air? A. Subhash Kumar versus State of Bihar, यही आंसर है। A is the answer. नीलबाती बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये किस पर था? ये कस्टोडियल डेथ पर केस था, मतलब पुलिस की कस्टडी में डेथ हो गई, इतना टॉर्चर कर दिया कि वो मर ही गया बेचारा। फिर है शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कस्टोडियल टॉर्चर, इलीगल डिटेंशन पर केस था। ओल्गा टेलिस वर्सेस BMC, ये है राइट टू लाइवलीहुड पर, राइट टू लाइवलीहुड। जो पेवमेंट डिवेलर्स हैं, मतलब जो फुटपाथ पर रहते हैं, जो अपना कुछ रेडी लगाते हैं, उनके लिए था ये केस, ये है ना। इसमें ये आंसर है। This is 19. Which PIL case resulted in the Supreme Court of India laying down the principle of absolute liability? अब देखिए ये जिनमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हम बोलते रहते हैं, पर कौन से वाला? 87, 88, 97, 99, कौन सा वाला MC मेहता केस? तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। मैं आपको बता भी देता हूँ सारे केस कौन कौन से हैं। देखिए जो 87 में आया था, ये था ओलियम गैस लीक केस, जिसको हम बोलते हैं ओलियम गैस लीक केस। इसमें दिल्ली के पास जो है ओलियम गैस लीक हुई थी, इससे काफ़ी लोग मर गए थे, जैसा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वैसे ही सेम। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 वाला केस आया था, और यही इसी में ही जो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात की गई थी, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। तो ए इसमें आंसर है। अब ये MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988, ये गंगा पोल्यूशन केस है, जो कानपुर में जो इंडस्ट्रीज है ना, लेदर इंडस्ट्री, सारा एफ्लुएंट जो है गंगा में डाल रहे थे, तो उस पर जो है डायरेक्शंस आई थी। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इसमें इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि हम पढ़ते हैं एडमिन लॉ में।
फिर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, देखिए 2 MC मेहता है, एक कमलनाथ और एक यूनियन ऑफ इंडिया 1997 की जजमेंट्स है। ये है ताज ट्रेपेजियम केस। तो ताजमहल के पास जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जिससे जिनके पोल्यूशन से ताज जो है वो अपनी ब्यूटी खोता जा रहा था, तो उसको बंद करवाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, केसेस कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। 87 जो ओलियम गैस लीक केस, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। This is 20. According to the CPC, who can direct the court that pass decree to take security when the execution order is challenged in the appeal? Only the High Court exercise jurisdiction, या फिर appellate court, या फिर district register of property, या फिर police authority? Appellate court hearing the appeal, B is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये? This is order 51 and this is rule 6. All right. Next 21. Under the CPC, how many High Court judges constitute the judicial membership of the Rule Committee? 3 judges of High Court, 2, 4 या फिर 5? 3 judges of High Court. A is the answer. Section कौन सा है? This is section 123 of CPC. Next 22. Under section 58 of CPC, what is the maximum period of detention in civil prison for a decree amount exceeding 5,000? अब देखिए, अगर 2,000 रुपये तक का कोई फाइन है तो उसमें कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। 2,000 से और 5,000 तक का फाइन है तो उसमें होती है 6 वीक्स की इम्प्रिजनमेंट। ठीक है जी। अगर एक्सीडिंग 5,000 से और 10,000 है तो कितना रहेगा? 3 मंथ्स। तो यहाँ एक्सीडिंग 5,000 है तो 3 मंथ्स, सी इज द आंसर। अगर 10,000 एंड अबव है तो मैक्सिमम 6 मंथ्स। सी इसमें आंसर को सेक्शन बता ही दिया। Next is 23. Which of the following situation falls within the section 58(1)(b) of CPC? डिक्री 4 रुपीज़। अभी देखिए मैंने अभी बताया 1,800 रुपये तक का है तो कोई इम्प्रिजनमेंट डिटेंशन नहीं होगी। अब ये अगर 350 है तो 6 वीक्स, ये ठीक है। अब 6,200 मतलब 5,000 से ऊपर है तो कितना होगा? 3 मंथ्स का, क्योंकि 10,000 से ये लेस है। डिक्री 4 10,000 नो, यहाँ पर 6 मंथ्स होगा। तो ठीक कौन सा इसमें? फिर बी इज द आंसर। नेक्स्ट 24. A civil suit is filed against Ajay and the court issues summons requiring him to appear. After receiving the summons, Ajay consults his lawyer to understand the timeline for filing his written statement of defense in CPC. Within how many days from the date of service of summons he submits his WS? तो नॉर्मल केस है वो कितना है? 30 डेज। फिर एक्सटेंशन मिल जाती है कितने दिन की? 60 डेज की। तो मैक्सिमम 90 डेज में आप जो है सबमिट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें ये आंसर रहेगा। ऑर्डर है ये 8 रूल 1। नेक्स्ट 85. हाउ लॉन्ग डज द रजिस्टर्ड एड्रेस फर्निश अंडर सेक्शन 14A(1) ऑफ द CPC रिमेन्स वैलिड इफ नॉट चेंज्ड? देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ गलत कर दिया, ये सेक्शन लिख दिया इधर। दिस इज ऑर्डर 6 एंड रूल 14A(1), है ना। तो उसमें जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उसके जो सब रूल 2 में लिखा हुआ है कि 2 years after the final determination of the cause. C is the answer. Next 26. According to section 35A of CPC, what is the maximum amount a court can award as compensatory cost in ordinary cases? 2,000, 10,000, 5,000, 3,000. It is 3,000. D is the answer. Next 27. As per section 11 of CPC, for a judicata to be applicable on a subsequent suit, the former suit shall has been finally decided. Yes, बिल्कुल ठीक है जी। Can only be instituted prior to the subsequent suit. No, ये गलत है। Relates to the same matter directly and substantially in issue in the subsequent suit. बिल्कुल ठीक है जी। Is between the same parties or between parties under whom they or any of them claim. बिल्कुल ठीक है जी। तो 1, 3 and 4 इसमें आंसर है। 1, 3 and 4 ये रहा। सी इज दी आंसर। सेशन पता ही लिखा हुआ है रेजुडिकाटा का। नेक्स्ट 28. Where the decree is for payment of money, execution by detention in prison shall not be ordered unless, after giving the judgment debtor an opportunity for showing cause, the court is satisfied that judgment debtor is likely to abscond or leave the local limits of the jurisdiction of court,
यहाँ इसको पकड़ लेंगे। जजमेंट लेटर हैज़ बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन विच अ डिक्री वाज पास डिसोनेटली ट्रांसफर्ड एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यहाँ भी पकड़ लेंगे। फिर डिक्रीज फॉर सम ऑफ विच जजमेंट लेटर वाज बाउंड इन फिड्यूशरी कैपेसिटी टू अकाउंट, ये भी ठीक है जी। Judgment letter has or has had since the date of decree the means to pay substantial amount of the decree and neglected to pay the same, सब में पकड़ लेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आंसर रहेगा। डी इज द आंसर। 1 2 3 4 सेक्शन है ये 51 इन सीपीसी। This is 29. As per CPC, decree ex parte can be set aside against the defendant if it satisfies the court that summons was not duly served. हाँ, ये तो कर देंगे तब तो, है ना। सिटिंग असाइड एक्सपायर्ड डिग्री कहाँ पर है? ऑर्डर 9 रूल 13 में। फिर इफ सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपीयरिंग व्हेन द सूट वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, बिल्कुल ठीक है जी, हो जाएगा यहाँ भी। इफ वी सेटिस्फाई द कोर्ट दैट देयर हैज बीन एन इरेगुलरिटी इन द सर्विस ऑफ समवन डिस्पाइट द फैक्ट दैट डिफेंडेंट हैड नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग एंड हैड सफिशिएंट टाइम टू अपीयर, तो यहाँ तक अगर नोटिस था तो वहाँ पर समवन सर्विस उसकी वो क्लेम नहीं ले पाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। विदाउट नोटिस बीइंग सर्व्ड ऑन द अपोजिट पार्टी, यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो थर्ड साइड होगी किसमें? 1 and 2 में। ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 30. A juvenile aged 14 years is brought before the court for an offense not punishable with death or imprisonment for life. Under which provision of the CRPC will the case primarily fall? 27, 125, 302, 482. It is section 27. A is the answer. ये पहले दिया हुआ था CRPC में, अब जो है BNSS में जो है ये सेक्शन नहीं है, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। नेक्स्ट 31. अंडर सेक्शन 291 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये देखिए मिक्स करके पूछा हुआ है, एक सीआरपीसी का पूछ लिया, फिर ये भारतीय, अब ये बीएनएसएस का पूछ लिया है ना। सेक्शन किसका है? बीएनएसएस का। विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कैन अक्यूज फाइल एंड एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग? 15, 30, 45, 60, इट इज 30 डेज। बी इज द आंसर। देखिए पहले जो है ना सेक्शन 265 बी था ये, और वहाँ पर कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया हुआ था, लेकिन अब जो है बीएनएसएस में टाइम फिक्स कर दिया 30 डेज का। ये ठीक बात भी है, कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 32. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ BNSS, what is the minimum period of practice as an advocate required to be considered eligible for appointment of a PP or APP? 3 year, 5 year, 7 year, 10 year. It is 7 years. C is the answer. पहले था कि सेक्शन 24 इन CRPC, अब 18 है। नेक्स्ट 33. As per section 30 of CRPC, if a magistrate sentence a person to 2 year imprisonment and a fine, what is the maximum imprisonment he may impose on default of payment of fine? सेक्शन 30 जो अब हो गया है सेक्शन 24 इन BNSS। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट, जो कि उस ऑफ, मान लो कि थेफ्ट है उसे मैक्सिमम 3 ईयर्स का, लेकिन 2 ईयर की पनिशमेंट दी है, तो 1/4 किसका लगेगा? 3 ईयर का 1/4 लगेगा, मतलब 9 मंथ्स की पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है ना, मैक्सिमम। बट यहाँ पर तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सेंटेंस किया है, अब ये नहीं हो यहाँ बताया हुआ है कि भाई जो ऑफेंस था उसमें कितने ईयर्स की पनिशमेंट थी, तो मैं कहूँगा कि ये ऑप्शन जो है ठीक नहीं बनाए। अगर 2 ईयर के हिसाब से देखेंगे तो ऑब्वियसली फिर 6 मंथ आ जाएगा, बट दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। आई वुड से द क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपर। नेक्स्ट 34. Under which provision can a citizen file a public case in the court of magistrate regarding issue of the public interest? 302 IPC क्या है? ये मर्डर की पनिशमेंट है। 144 CRPC क्या होता है? बोलते ना कर्फ्यू, कर्फ्यू लग गया। 133 कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। सी इज द आंसर। अब हो गया 152 इन BNSS। नेक्स्ट 35. अब अदर्शंस एंड रीजंस हैं। अदर्शन है एनी पर्सन हैविंग एन इंटरेस्ट इन न्यूज़पेपर डिक्लेयर्ड फॉरफिटेड मे अप्लाई टू हाई कोर्ट सेट असाइड डिक्लेरेशन विद इन 2 months फ्रॉम इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, ठीक है।
The special bench of High Court to hear such application must always consist of exactly 3 judges regardless of the strength of the High Court. नहीं, 3 जजेस होंगे अगर हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ हो 3 से ज़्यादा है, इफ़ मोर देन 3। अगर मान लो 2 ही है जैसे सिक्किम है, तो मैक्सिमम जो रहेगी वो रहेगी, ठीक है ना? तो ये गलत हो गया, ए ट्रू है, आर जो है फॉल्स है। पहले सीआरपीसी में सेक्शन था ये 96, अब हो गया है 99 इन बीएनएसएस। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 36, फिर से अदर्शन रीजंस हैं। अदर्शन है अंडर बीएनएसएस इफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन प्रोक्लेमेशन द कोर्ट शैल रिलीज द अटैच प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल ठीक है जी। कहाँ मेंशन किया हुआ है ये? इन सेक्शन 88 ऑफ बीएनएसएस। रीजन क्या है उसका? द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर बीएनएसएस इज इंटेंडेड टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बिफोर द कोर्ट, नॉट टू परमानेंटली डिप्राइव हिम ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका रीजन भी करेक्ट है, तो ए इसमें आंसर रहेगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट 37, if multiple offense carry different punishment but it is unclear which has been committed, how does section 72 of IPC ensures proportional justice? By imposing the punishment for the offense which with the lowest prescribed term, बिल्कुल ठीक है। एवरेज ऑफ ऑल या फिर चॉइस ऑफ प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी या फिर सस्पेंडिंग पनिशमेंट अंटिल फर्दर क्लैरिफिकेशन। ए इसमें आंसर रहेगा। अब ये हो गया सेक्शन 10 इन बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट 38, इफ अ कन्विक्ट सेंटेंस टू लाइफ imprisonment is being considered for the remission fraction under section 57 for remission fraction under section 57 IPC, which equivalent term year is applied by the court? 10 year, 20, 40 या फिर 50 years? 20 years of imprisonment, B is the answer। अब हो गया सेक्शन 20 इन बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट 39, if a bailiff executes an eviction based on a civil court order later declared void for lack of jurisdiction, what protection does section 78 IPC provides? Bailiff is punishable? No. The bailiff can be punished only with reduced penalty? No. Exempt as he acted in good faith under the order? C is the answer। सेक्शन 78 ये तो कहता है गुड फेथ में किया तो नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, नो ऑफेंस। अब सेक्शन कौन सा हो गया है ये? देखिए ये है जनरल एक्सेप्शंस, जो कि स्टार्ट होती हैं 14 से। तो ये है सेक्शन 16 इन बीएनएस। नेक्स्ट इज 40, अंडर बीएनएस व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज एन ऑफेंडर मे बी केप्ट इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट एट अ टाइम। ये नंबर ऑफ डेज की सोलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए कहाँ लिखा हुआ? सेक्शन 73 में। अभी पर्टिकुलर डेज के लिए कहाँ लिखा हुआ? 74 इन आईपीसी। क्या लिखा हुआ है वहाँ पे कि अगर 3 मंथ से कम की इम्प्रिजनमेंट है, पनिशमेंट है 3 मंथ से कम की दी हुई है, एक टाइम में जो है 14 डेज से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। अगर 3 मंथ से ऊपर की पनिशमेंट है तो 7 डेज से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम पूछा हुआ तो 14 डेज है, तो सी इसमें आंसर रहेगा। भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन है कौन सा है ये? 12। This is 41, under BNS, if a person is ordered to pay a fine of rupees 4,000 but fails to do so, what is the maximum simple imprisonment the court may impose on the default? देखिए मैंने अभी बताया था पेमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन है, जो कितना मांग रहे हैं, फाइन लगाया 4,000 का। 5,000 रुपीज़ का जब आपने डिफॉल्ट किया तो 2 महीने की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। फिर 5,000 से और 10,000 तक का आपने डिफॉल्ट किया है तो मिलेगी 4 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट। अगर 10,000 से ऊपर का अमाउंट है वो आपने डिफॉल्ट कर दिया तो मैक्सिमम 1 ईयर की पनिशमेंट। 10,000 से ऊपर चाहे 1 करोड़ हो, बट इतना फाइन कहीं पर लिखा नहीं हुआ है ना। तो इस केस में कितना है? 4,000 है तो 2 मंथ्स। बी इज दी आंसर। सेक्शन है ये 18 भारतीय न्याय संहिता। इसी 42, अब 2 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 है अंडर आईपीसी इफ अ पर्सन हार्बर्स एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड कस्टडी फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर। नो, 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी अगर इम्प्रिजनमेंट वाला अगर वो है तो
तो ये हो गया रॉन्ग। सेक्शन है ये 212 ऑफ आईपीसी। अब हो गया सेक्शन 249 इन भारतीय न्याय संहिता। फिर स्टेटमेंट 2 है द लॉ प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन फॉर हार्बरिंग और कंसीलिंग बाय हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ द ऑफेंडर। पहले हस्बैंड एंड वाइफ लिखा हुआ था, जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है वहाँ पे सेक्शन 212 में। अब जो है इसको कर दिया गया है स्पाउस। तो ठीक है ये, तो 1 रॉन्ग हो गई, तो सेकंड ट्रू है, तो ओनली 2 इज ट्रू, सी इज द आंसर। ऐसे 43 इफ अ पर्सन अटेम्प्ट्स एन ऑफेंस punishable with a maximum of 10 years imprisonment, what is the maximum years of imprisonment that can be imposed under section 62 of Bharatiya Nyaya Samhita? 5 years, 7 years, 10 years, 3 years. It is 5 years. A is the answer. कैसे? मैक्सिमम 10 है और कितना लिखा हुआ उसमें, अटेम्प्ट के लिए हाफ जो है पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है ना। सेम जो है 511 आईपीसी में था, अब तो चेंज हो गया ऑब्वियसली बीएनएस, तो 62 ही याद रखिए अब। ऐसी 44 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल असर्शन रीजन। असर्शन है बीएनएस प्रेस्क्राइब डेथ पेनल्टी फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ गैंग रेप। यस बिल्कुल ठीक है, अगर लेस देन 18 ईयर ओल्ड कोई गर्ल है उसका अगर गैंग रेप हुआ तो पनिशमेंट इज डेथ। रीजन क्या है? द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन इज टू मेक ऑल सेक्सुअल ऑफेंसेस नॉन बिलेबल। ये नहीं पर्पस है ना, स्टॉप करना है वो तो। अब सेक्शन हो गया बीएनएस में सेक्शन 70 एंड सबसेक्शन 2। तो ओनली ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 45 अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट व्हेन कैन फैक्ट दैट आर अदरवाइज इररेलेवेंट बी कंसिडर्ड रेलेवेंट? ओनली व्हेन दे प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड डायरेक्टली, या फिर फॉर्म पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन, या फिर व्हेन दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, या फिर दे आर द पार्ट ऑफ एडमिशन मेड इन राइटिंग। सी इज द आंसर। इसके लिए देखिए आप सेक्शन 11 इन एविडेंस एक्ट, जो कि अब हो गया है 9 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट 46 व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर प्रायर एविडेंस टू बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 33? द एविडेंस मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ जूरी, या फिर वाज बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट। ये बिल्कुल ठीक है। मस्ट हैव बीन पब्लिश्ड इन गवर्नमेंट गजट, नो। मस्ट हैव बीन कोलैबोरेटेड बाय द एक्सपर्ट ओपिनियन, बी इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 27 इन बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Next 47 during a court trial the defense lawyer objects to the admissibility of certain papers produced as evidence. The judge clarifies that only documents categorized as public document are the under Indian Evidence Act can be accepted without strict proof. Which category of documents would fall under the public document in this context? ड्राफ्ट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स, ये तो प्राइवेट है। ये पर्सनल डायरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, पर्सनल है तो प्राइवेट है। इंटर नोट्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट है। जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिसर, ये बिल्कुल ठीक है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो डी इज दी आंसर। सेक्शन कौन सा है? 74 एविडेंस एक्ट में भी और बीएसए में भी। नेक्स्ट 48 स्टेटमेंट 1 है अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम एडमिशंस आर जनरली रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम बट कैन नॉट ऑर्डिनरी बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। ये बिल्कुल ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है बीएसए में? इन सेक्शन 19। अब 19 ही याद रखिए, एविडेंस एक्ट तो हो गया पुराना। An admission can still be proved on behalf of the person making if it relates to the existence of the state of mind or body made at or about the time when such condition existed and is supported by conduct showing its truthfulness. ये 19(1) था ऊपर वाला, ये स्टेटमेंट 2 जो है 19(2) है, सबसेक्शन 2। दोनों ही ठीक हैं, बोथ आर ट्रू, डी इज द आंसर। Next is 49 which condition must be satisfied for things said or done by one conspirator to be admissible against the other under the Bharatiya Saksha Adhiniyam? The statement must be made after the conspiracy has ended, या फिर statement must involve unrelated matter, personal benefit, या फिर must be reasonable ground to believe a conspiracy exists. There must be proof that each conspirator personally committed the act. तो reasonable ground to believe that conspiracy exists, सी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है ये?
दिस इज सेक्शन 8 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पहले सेक्शन 10 था ये इन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट इज 50, which of the following statement is incorrect as per the Bharatiya Saksha Adhiniyam? A contract in writing with B for delivery of indigo upon certain terms. The contract mentions that the fact that B had paid A the price of other indigo contracted for verbally on another occasion. मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वर्बल था और पे कर दिया था। ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड दैट नो पेमेंट वाज मेड फॉर द अदर इंडिगो, उसके अलावा इंडिगो थी उसकी पेमेंट नहीं हुई है। दिस एविडेंस इज एडमिसिबल। ठीक है, ठीक है जी। सेक्शन 94 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलस्ट्रेशन डी है ये 94, जो कि पहले सेक्शन 91 था इन एविडेंस एक्ट। अब बी है, ए अग्री एब्सोल्युटली इन राइटिंग टू पे बी 1000 रुपीज on 1st March. The fact that at the same time an oral agreement was made that the money should not be paid till 31st March can be proved. No, ये नहीं कर पाओगे। सेक्शन 95 इलस्ट्रेशन बी है ये, तो ये रॉन्ग हो गया, तो यही आंसर है, बी इज दी आंसर, इनकरेक्ट। आगे देखते हैं। सी है, ए एंटर्स इनटू रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू वर्क सर्टेन माइंस द प्रॉपर्टी ऑफ बी upon certain terms। ठीक है जी। A was induced to do so by misrepresentation of B as to their value. This fact may be proved. Yes, ये कर सकते हैं। ये 95 में illustration D है। फिर A orders goods from B by a letter in which nothing is said as to the time of payment and accepts the good on delivery. B sues A for price. A may show that the goods were supplied on credit for a टर्म स्टिल अनएक्सपायर्ड। ये बिल्कुल ठीक है, ये इलस्ट्रेशन एच है, तो बी इसमें आंसर है। नेक्स्ट 51, व्हेन इज अ कन्फेशन मेड बाय पर्सन इन पुलिस कस्टडी एडमिसिबल अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम? ओनली इफ इट इज मेड वॉलंटरी इन राइटिंग या फिर मेड इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। बी इज द आंसर। पहले भी यही था, अब भी वही ही है। अब हो गया सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 52, विच सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम परटेन्स टू ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट? 30, 39, 36, 46। इट इज 39। बहुत बार बताया है मैंने पिछली वीडियोस, अब देखेंगे तो बी इज द आंसर। पहले सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट था, अब 39 हो गया है ये। Next is 53. Under the Indian Contract Act, what happens if the principal debtor leaves the part of debt unpaid and there are two or more co-sureties? तो देखिए क्या होगा, creditor alone bears the unpaid portion। जब दो co-sureties हैं तो फिर creditor क्यों bear करेगा? Debtor's family no, co-sureties share the unpaid portion in equal contribution। C is the answer। Entire unpaid portion is paid by the surety first approach। सी इसमें आंसर रहेगा। कैसे? सेक्शन 146 एंड 147 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिए इसके लिए। ऐसे 54, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर? व्हेन द एक्सेप्टर प्रिपेयर्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, या फिर व्हेन इट इज डिस्पैच्ड, मतलब एक्सेप्टेंस जो है आपने डिस्पैच कर दी एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सेप्टर। अब जो है वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एक्सेप्टर हो गई, ठीक है ना, तो मतलब पहुंची जाएगी वो प्रपोजर के पास। यही है इसमें आंसर है, सी इज दी आंसर। जैसी लेटर आपने पोस्ट कर दिया, एक्सेप्टेंस आपकी कंप्लीट हो गई अगेंस्ट द प्रपोजर। अब एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब होगी? व्हेन इट रीचेज टू दी, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, तब एक्सेप्टर जो है बाउंड होगा। सेक्शन 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिए इसके लिए आप। नेक्स्ट 55, as per Indian Contract Act, an acceptance must be absolute and unqualified. What is the legal effect if an offeree responds to a proposal introduces a new term? ऑफरी मतलब जिसको ऑफर दिया गया है। ए ने बी को एक ऑफर दिया, बी कौन हो गया? ऑफरी, ठीक है। बी ने फिर उस पर काउंटर ऑफर दे दिया, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू टर्म कर दिया। इट बिकम्स अ वैलिड एक्सेप्टेंस? नो। ऑपरेट्स एज वैलिड एक्सेप्टेंस इफ न्यू टर्म इज नॉट मटेरियल? नो। It constitutes a counter proposal thereby rejecting the original proposal. C is the answer.
एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड, ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 7 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट इज 56. The Indian Contract Act provides for specific situation where an agreement without consideration is not void. Which of the following agreement is valid despite the lack of fresh consideration? An oral promise by A to pay B rupees 5,000 for a service B voluntary rendered to A last month. ये ठीक है। फिर है written and registered promise by a husband out of natural love and affection to transfer property to his wife. This is also correct. ये void नहीं है। A promise to subscribe 1 lakh to a public charitable fund, ये नहीं होगा। Promise made by a minor upon attaining majority to pay debt incurred during his minority, ये wrong है। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। ए ने प्रॉमिस किया किसको? बी को फॉर सर्विस। बी ने जो है वॉलंटरी रेंडर करी थी ए को लास्ट मंथ, मतलब बी हैज़ डन समथिंग ऑलरेडी और उस पर जो है प्रॉमिस कर दिया, तो इट वुड फॉल अंडर दी सेक्शन 25 एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन 1 जो ये आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, प्लस जो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड भी है, रिटर्न भी है, रजिस्टर्ड भी है। और व्हेन समबडी हैज़ डन समथिंग ऑलरेडी, और यहाँ प्रॉमिस किया, तो दोनों ही ठीक हैं। ये बी एक्सेप्शन 1 है एंड ये ए जो है एक्सेप्शन 2 है इन सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मैं कहूँगा दोनों ही ठीक हैं ये। नेक्स्ट इज 57. Under specific relief act, when can a defendant in possession of movable property be compelled to deliver it to the plaintiff when the property is held as agent or trustee of the plaintiff, या फिर when the property is held as a mortgage asset of the plaintiff, या the property is held as a lessee or subtenant of the plaintiff, या फिर when the property is held as co-owner in the common with the plaintiff, held as agent or trustee। A is the answer। सेक्शन 8 देख सकते हैं इसके लिए आप इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। नेक्स्ट 58. फॉर अ पिटीशन फॉर nullity ऑफ मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, व्हाट इज स्टैट्यूटरी बार टू ग्रांटिंग द डिक्री। मतलब स्टैट्यूटरी बार पूछ रहे हैं, ये फ्रॉड से शादी कर ली। अब कहने का मतलब क्या है, एक पिटीशन फाइल करी कि भाई ये फ्रॉड से शादी हुई है। अब डिफेंस क्या ले सकते हैं जिससे कि वो डिक्री ग्रांट ना हो, स्टैट्यूटरी बार उसमें आ जाए। पिटिशन वाज फाइल्ड मोर देन 6 months आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, या फिर पिटिशनर हैज लिव्ड विद द रिस्पोंडेंट एज हस्बैंड एंड वाइफ आफ्टर डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड, या फ्रॉड रिलेटेड टू द सोशल स्टेटस, द पार्टी नॉट अटेम्प्टेड टू रिकंसिलिएशन थ्रू द काउंसलिंग सेंटर। बी इसमें आंसर रहेगा। फ्रॉड पता लगने के बाद भी आप ऐसे हस्बैंड वाइफ रह रहे हो, या तो उसी टाइम छोड़ जाओ, है ना। और यहाँ पर कोई टाइम पीरियड नहीं होता है जब फ्रॉड का पता लगा, तो एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप एज ए हस्बैंड वाइफ रह रहे हो तो इसमें इट मीन्स दैट यू हैव कंडोन दैट फ्रॉड। बी इसमें आंसर है। नेक्स्ट 59. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लेजिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वर्ड एंड अवॉइडेबल मैरिज कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है? सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। पनिशमेंट फॉर बायगैमी सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है। जुडिशियल सेपरेशन कहाँ पर है? सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। वर्डेबल मैरिजेज सेक्शन 12। वर्ड कहाँ पर है? 11 में, है ना। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? 4312। तो 4312 देखिए ये रहा, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 60. If a case is transmitted to the central government under section 10 of the Special Marriage Act, what is the time limit for solemnizing the marriage after its decision? 1 month, 2 months, 6 months, 3 months। 3 months का जो है लिमिटेशन रखा गया है। डी इज दी आंसर। उसके बाद जो है फिर से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है सेम। सेक्शन 14 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट देख सकते हैं इसके लिए आप। नेक्स्ट 61 अजेशन रीजन है। अजेशन है अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट ए डॉटर इन हिंदू जॉइंट फैमिली गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ बिकम्स ए को-पार्टनर बाय बर्थ इन हर ओन राइट जस्ट लाइक अ सन। बिल्कुल ठीक है जी। सेक्शन 6 प्रोवाइड कर रहा है अमेंडमेंट ऑफ 2005। दिस प्रोविजन ग्रांट्स डॉटर सेम राइट्स एंड लायबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज इन को-पार्टनर प्रॉपर्टीज एज दोज ऑफ सन। बिल्कुल ठीक है जी, दोनों ही ठीक हैं। ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई। ए इसमें आंसर हो जाएगा। Next 62. As per the Hindu Marriage Act, 2 persons are said to be within the degree of prohibited relationship if one is a lineal ascendant of the other, including relationship by adoption। बिल्कुल ठीक है।
One was the wife or husband of a lineal descendant and descendant of others, including relationship by half uterine blood as well as by full blood. ये भी ठीक है जी. One was the wife of brother or of fathers or mother's brothers or grandfathers or grandmother's brother of the other. ये भी ठीक है. The two are brother sister, uncle niece, aunt nephew or children of brothers or sisters or both brother or sisters. ये भी ठीक है जी. तो 1 2 3 4 इसमें आंसर हो जाएगा. सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है ये 3G इन हिंदू मैरिज एक्ट. तो 1 2 3 4 ये रहा. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 63. द ग्राउंड for decree of dissolution of marriage under section 2 of Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 are that the whereabouts of the husband have not been known for a period of 2 years. ये बिल्कुल गलत है. कैसे? इसमें 4 years आता है. ये क्लॉज है 1 in section 2. husband has been sentenced to imprisonment for a period of 7 years. ये भी wrong हो गया. ये है clause 3 section 2. husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligation for a period of 3 years. ये भी हो गया wrong. ये है clause 4. husband has neglected or has failed to provide for maintenance for his wife for a period of 2 years. ये भी wrong हो गया. तो ये है clause 2. ठीक है. तो इसमें क्या आएगा फिर? none of the above. D is the answer. Next 64. Rahul rents a shop in the city for running his retail business. Later, the landlord decided to terminate the lease. Since the lease is for the purpose other than agriculture or manufacturing, and there is no special contract between the parties, the landlord wonders how many days' notice he must legally give under the TPA to end the lease. What is the required notice period? 5 days, 15 days, 45 days, 60 days. देखिए अदर देन एग्रीकल्चर है तो ये होता है 15 डेज नोटिस. मंथ टू मंथ चलती है ना. लीज तो 15 डेज नोटिस देखिए आप छोड़ सकते हैं. बी इसमें आंसर है. और ये जो है कहाँ मेंशन किया हुआ है? इट इज मेंशन इन सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. नेक्स्ट 65. As per the IT Act, intermediary with respect to any particular electronic record means any person who on behalf of other person receives, restores, transmits that record or provides any service with respect to that record and includes टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर. ये होते हैं इसमें, इसको बोलते हैं TSP. फिर एक आता है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर NSP. फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP. और एक होता है वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर WHSP. ठीक है. सर्च इंजन है, साइबर कैफ़ेज़ हैं, ऑनलाइन ऑप्शन साइट्स हैं और भी बहुत कुछ है. ऑनलाइन पेमेंट साइट्स भी आती हैं इसमें. तो 1 2 3 4 इसमें आंसर हो जाएगा. ये रहा 1 2 3 4. डी इज़ दी आंसर. सेक्शन कौन सा है? जैसे सेक्शन 21W इन IT एक्ट. नेक्स्ट 66. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स related to IT Act. Under IT Act, a digital signature certificate may be suspended by the certifying authority on the request of subscriber and authorized representative, or it is considered necessary in the public interest. ये बिल्कुल ठीक है जी. मेंशन किया हुआ ये सेक्शन 37 ऑफ IT एक्ट में. फिर है स्टेटमेंट 2. अंडर द सेम एक्ट DSC कैन रिमेन सस्पेंडेड इंडेफिनेटली विदाउट प्रोवाइडिंग सब्सक्राइबर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. ये मैक्सिमम 15 डेज के लिए आप कर सकते हैं. ठीक है. तो ये रॉन्ग हो गया. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. तो इसमें आएगा B is the answer. Next 67. Under the Administrative Tribunal Act, a joint administrative tribunal for 2 or more states exercises the same jurisdiction, power and authority as an administrative tribunal for those states. ये बिल्कुल ठीक है. ये मेंशन किया हुआ है इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट के सेक्शन 16 में. स्टेटमेंट 2 है. फॉर द पर्पस ऑफ अ कंटेम्प्ट, ए ट्राइब्यूनल एक्सरसाइजेज पावर सिमिलर टू दोज ऑफ अ हाई कोर्ट एंड रेफरेंस टू हाई कोर्ट इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आर कंस्टिट्यूड टू इंक्लूड सच ट्राइब्यूनल. ये भी ठीक है. ये सेक्शन 17 है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट का. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 68. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पॉइंटेड आउट दैट द रूल ऑफ नीमो जुडेक्स इन कोजा सुआ इज सब्जेक्ट टू डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी. मतलब इसका क्या मीनिंग होता है नीमो जुडेक्स इन कोजा सुआ का? नो वन कैन जज हिज ओन कोज. मतलब अपने आप की कोज में कोई जज नहीं बन सकता. लेकिन यहाँ पे देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी भी लिखा हुआ है, विच इज सब्जेक्ट टू डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी. मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल प्रिंसिपल.
ठीक है, तो कौन से केस में बोला गया था ये? सानी सिल्क मिल्स में, या इन री डेली लॉज में, या फिर जे महापात्रा एंड कंपनी में स्टेट ऑफ उड़ीसा, या फिर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी गणयुथम। ये था जे महापात्रा एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 69, in the context of delegated legislation, the judicial doctrine that prevents the legislature from conferring uncontrolled legislative power on the administration is known as doctrine of ultra vires. And no, it is excessive legislation. B is the answer. Conditional legislation क्या होता है? When you put some condition for the enforcement of such act or law, that is conditional legislation. Separation of power आपको पता ही है, judiciary, executive and legislature, they have separate roles, separate powers. This is 70. Under section 37 of Arbitration Conciliation Act, which of the following order is not appealable? Refusing to refer parties to arbitration under section 8 ये है, इस पर अपील हो सकती है. Refusing to appoint arbitrator under section 11, इस पर नहीं हो सकती. फिर refusing to grant any measure under section 9 and refusing to grant interim measure under section 70, इन दोनों पर अपील हो सकती है. तो बी इसमें आंसर रहेगा. सेक्शन 37 देख सकते हैं आप. Next 71, according to section 25A of Arbitration and Conciliation Act, what happens if the claimant fails to submit his statement of claim without sufficient cause? The tribunal adjourns the case indefinitely, no, imposes a penalty but continues proceedings, assumes the claim is admitted, या फिर terminate the proceedings. It terminate the proceedings होता है इसमें. D is the answer. सेक्शन 25 देख सकते हैं इसमें आप. नेक्स्ट 72, स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं. ए डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन टू कंपनीज रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट ऑफ देयर आर्बिट्रेशन क्लॉज. एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड इट कैन बी कंटेन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट एन एक्सचेंज ऑफ लेटर, टेलेक्स, टेलीग्राम और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. बिल्कुल ठीक है. का मेंशन किया हुआ है ये इन सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट. फिर है एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी इम्प्लाइड सोलली फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट एनी रिटन रिकॉर्ड. ये रॉन्ग है. 7 में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि राइटिंग में होना चाहिए, या फिर क्लॉज भी हो सकती है एग्रीमेंट. तो इसमें 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग. तो ओनली 1 इज ट्रू. ए इसमें आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट 73, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आर सेट टू हैव कमेंस्ड अंडर सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, या फिर on date of arbitration agreement is signed, या फिर on the date of request for the reference is received by the respondent. यही आंसर है. सी इज द आंसर. डेट ऑफ ट्राइब्यूनल इशू नोटिस. सी इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 74, अंडर सेक्शन 9A ऑफ एडवोकेट्स एक्ट, लीगल एड कमिटी constituted by a bar council shall consist of not exceeding 13 but less than 9, या फिर 11, या फिर not exceeding 9 but not less than 5 members. यही आंसर है. सी इज द आंसर. सेक्शन 9A देख सकते हैं इसके लिए आप ऑफ एडवोकेट्स एक्ट. नेक्स्ट 75, विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर डिसिप्लिनरी पावर्स ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया? 35, 36, 37, 38. दिस इज 36. बी इज द आंसर. 35 क्या है? पनिशमेंट है फॉर एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट. 37 क्या है? अपील है. ये अपील टू BCI. 38 क्या? अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट 76, टू स्टेटमेंट्स हैं, टू कंक्लूजन दिए हुए हैं. स्टेटमेंट है, कंक्लूजन्स हैं. स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट एक्ट, व्हेन द टर्म ऑफ अ स्टेट बार काउंसिल एक्सपायर्स विदाउट एन इलेक्शन, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया शैल कंस्टिट्यूट अ स्पेशल कमिटी विदाउट कंसिस्टिंग ऑफ द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल एज चेयरमैन एंड 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स. ये ठीक है. फिर है, द special committee has the power to discharge all the function of state bar council until the new council is constituted, and the election must be held within 6 months unless the period is extended by the bar council of India. This is section 8A of advocate act. ठीक है. अब इसमें conclusions हैं. फर्स्ट है, द स्पेशल कमिटी इज एम्पावर टू हैंडल पेंडिंग डिसिप्लिनरी मैटर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल. हाँ, ये जो है रहता ही है. इसी 8A के सेक्शन 3 में मेंशन किया हुआ है ये. फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड दी 6 month पीरियड फ्रॉम होल्डिंग इलेक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल फॉर रिकॉर्डेड रीजंस. ये भी ठीक है. ये भी सेक्शन 3 में ही मेंशन किया हुआ है. तो इसमें दोनों ही फॉलो करेंगे
तो बोथ कंक्लूजन्स 1 and 2 फॉलो, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 77, अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। टोट के क्वेश्चन है ये। एक्टिव कोर्ट पे कौन सा केस है? निकोलस वर्सेस मार्सलन, ठीक है। कंसेंट वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया पे कौन सा केस आएगा? हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये है वॉन वर्सेस टैफवेल रेल। नेसेसिटी पे कर्क वर्सेस ग्रेगरी। लेकिन जो ये कर्क वर्सेस ग्रेगरी है, ये जो है ट्रेसपास पर था। आई डोंट नो व्हाई इट इज मेंशन हियर नेसेसिटी। सो क्या बन गया इसमें? 3412 3412, ये रहा, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 78, स्टेटमेंट 1 है, अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड और ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन क्रिएट्स नो ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट बिटवीन द पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन। ये बिल्कुल ठीक है, ये मेंशन किया हुआ सेक्शन 43 ऑफ एनआई एक्ट में। फिर अकॉर्डिंग टू द सेम एक्ट, इफ द कंसिडरेशन फॉर विच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज इशूड फेल्स इन पार्ट, अगर यहाँ पर ये लिखा होता फुल, द होल्डर इन इमीडिएट रिलेशन इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ओनली द प्रोपोर्शनेट अमाउंट कोरस्पॉन्डिंग टू द कंसिडरेशन एक्चुअली रिसीव्ड। ये हो गया रॉन्ग, 43 में ही मेंशन है ये, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो ये रहा, बी इज द आंसर। Next 79, according to NI Act, what is the maximum sentence of imprisonment that the magistrate may pass in summary trial under section 143? 6 months imprisonment, 2 year, 1 year, 3 year. It is 1 year imprisonment. C is the answer. Next is 80, assertion है, an employee can be deemed to be in continuous service for 1 year only if he has worked for 365 days in the pending preceding 12 months without any interruption. इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, 180 डेज एंड 240 डेज फॉर नॉर्मल एम्प्लॉयज़। इतना दिन काम किया है तो कंटिन्यूस सर्विस है, तो ये रॉन्ग हो गया। काम मेंशन किया हुआ इन सेक्शन 2A ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। फिर अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, कंटिन्यूस सर्विस में ऑल्सो इंक्लूड्स पीरियड ऑफ इंटरप्शन ड्यू टू सिकनेस, एक्सीडेंट, लीव, ले ऑफ, स्ट्राइक और लॉकआउट नॉट कॉज बाय द एम्प्लॉयज़ फॉल्ट। ये ठीक है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, D is the answer. This is 81. According to Payment of Gratuity Act, under what circumstances is the completion of 5-year continuous services not mandatory for the payment of gratuity to the employee by his employer? Voluntary resignation from the post of the employee after dismissal of the employee due to misconduct at work, death or disablement of the employee due to accident or disease, transfer of employee to another department within the same organization. ये wrong है, तो सी इसमें आंसर है। सी में लिखा हुआ है ये चीज़, ये मेंशन किया हुआ है इन सेक्शन 4 ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के प्रोवाइजो में, ठीक है। नेक्स्ट 82, मिस्टर एक्स ओन्स अ बेकरी वेयर ही एम्प्लॉयज वाई, 16-year-old adolescent. At first, X gives Y every Sunday off as his weekly holiday. After 2 months, X decides to change the weekly holiday to Wednesday and pastes a notice about this change on a bakery wall. According to the Child and Adolescent Labor Prohibition Act, this change is valid या फिर invalid since the weekly holiday cannot be altered before the completion of at least 3 months. जिसमें लिखा हुआ है आपके सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट की 3 महीने में आप एक बार ही चेंज कर सकते हो हॉलीडेज की टाइमिंग्स, है ना, तो 20 में आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 83, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट इज फॉलोड। स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्रेडिट्स ₹15,000 टू चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर फंड फॉर ईच चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट फॉर होम द फाइन फ्रॉम द एम्प्लॉयर हैज बीन डिपॉजिटेड। ये ठीक है। द अमाउंट ऑफ द फंड डिपॉजिटेड इन और इन्वेस्टेड इन द बैंक एंड द इंटरेस्ट एक्रूड इज ऑल्सो पेबल टू द चाइल्ड और एडोलेसेंट। ये बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 14B है ये ऑफ दिस चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोविजन एक्ट। तो इसमें कंक्लूजन है, द चाइल्ड और एडोलेसेंट इज एंटाइटल्ड नॉट ओनली द क्रेडिट अमाउंट बट ऑल्सो द इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इट। बिल्कुल ठीक है जी। गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एनी मनी अदर देन व्हाट इज कलेक्टेड एज फाइन फ्रॉम द एम्प्लॉय। ये ज़रूरी नहीं है, ये गलत है ना, फाइन तो है ही है, 15,000 में तो देंगे। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, 2 नॉट, तो ये ए ही इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 84, a company registered under the Companies Act is required to file a declaration for commencement of business before starting operation. बिल्कुल ठीक है। ये मेंशन किया हुआ है इन सेक्शन 10A ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है।
The director ignores this obligation and the company and the firm commences business activities without filing a declaration. देखिए यहाँ firm लिख दिया, company लिखना चाहिए था. How much penalty can be imposed on the company by the registrar concerned for such non-compliance? 25,000, 50,000, 75, 1 lakh. It is 50,000 rupees. कंपनी में 50,000 रुपये की है तो 20 दिया आंसर. जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इसके डायरेक्टर्स हैं उन पे कितना लगेगा 1000 पर डे मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़. कंपनी में 50,000 लगेगा. नेक्स्ट इज 85 स्टेटमेंट है एज पर सेक्शन 157 कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी मस्ट विद इन 15 days फ्रॉम रिसीविंग इंटीमेशन अंडर सेक्शन 156 फर्निश डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल इट्स डायरेक्टर टू द रजिस्ट्रार विद प्रेस्क्राइब फी फेलियर टू कंप्लाई एट टैक्स पेनल्टीज. ये बिल्कुल ठीक है जी. लिखा ये स्टेटमेंट है ये तो ठीक ही है होगा इसमें तो. फिर कंक्लूजन्स क्या क्या है इसमें. इफ अ कंपनी फेल्स टू फर्निश DIN इट कैन बी पेनलाइज्ड. यस बिल्कुल ठीक है. कितना फाइन है 25,000 रुपये का. एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट इज ऑल्सो लाइबल फॉर पेनल्टीज. यस 1000 पर डे मैक्सिमम 1 लाख. अब दोनों ही ठीक हैं तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज. सी इज द आंसर. सेक्शन बता ही दिया. नेक्स्ट इज 86. The Central Consumer Protection Council provided under Section 3(2) of the Consumer Protection Act shall consist of a chairperson and 10 other members या फिर chairperson 5 other member, chairperson and such other members as may be prescribed. C is the answer. यही लिखा हुआ है Section 3(2) में of Consumer Protection Act 2019. Next is 87. Which person will not be treated as a consumer under the definition of Consumer Protection Act? A person who purchases a refrigerator on installment for home use. कंज्यूमर है. ए पर्सन हु बाइज अ टेलीविजन पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस फॉर फैमिली यूज ये भी है. अ पर्सन हु परचेज गुड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस ये कंज्यूमर नहीं होगा. क्यों? ये कमर्शियल पर्पस है यहाँ पर. ए पर्सन हु यूजेज फर्नीचर ब्रॉड बाय रिलेटिव द लेटेस्ट कंसेंट ये भी कंज्यूमर है. तो सी नहीं होगा. सी इज द आंसर. कंज्यूमर की डेफिनेशन कहाँ प्रोवाइड की हुई है? इन सेक्शन 27 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में. Next is 87. According to Copyright Act, what is ordinarily the maximum punishment for copyright infringement under Section 63? Imprisonment है कितने की? 3 year, 2 year, 5 year, 7 year और फाइन है कितना है? 3 years है इसमें और फाइन 2 लाख रुपीज़ है. 2 lakh. A is the answer. Next is 89. Under the Patent Act, which situation prevents a patent application from being published even after the expiry of the prescribed period? When the applicant has filed a request for early examination या फिर secrecy direction is imposed under section 35 या patent has already been granted by the controller या फिर the applicant has requested for extension of time. The secrecy direction is imposed under section 35. B is the answer. Section कौन सा लगेगा? 11A in Patent Act. Next is 90. Statement है under Environment Protection Act. When an offence is committed by a company, every person who is directly in charge of and responsible to the company at a time of the offence as well as company itself is deemed guilty. बिल्कुल ठीक है. However, a person may escape liability if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent it. बिल्कुल ठीक है जी. ये तो सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है 15A and 15B of Environment Protection Act. अब कंक्लूजन्स क्या क्या है इसमें? A company as well as its responsible officer may be held liable for environmental offence under the act. बिल्कुल ठीक है. Officer of the company can never escape liability. नहीं ये wrong है. तो only conclusion 1 follows. A is the answer. अगर वो प्रूव कर देगा कि भी मेरी नॉलेज के बिना हुआ है तो फिर वो लाइबल क्यों होगा? नेक्स्ट इज 91. स्टेटमेंट है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मैजिस्ट्रेट मे इशू अ प्रोटेक्शन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रेस्पोंडेंट फ्रॉम कमिटिंग एक्ट ऑफ domestic violence, contacting the aggrieved person, alienating assets or स्त्री धन without permission or causing harm to her dependents. बिल्कुल ठीक है जी. ये सेक्शन 18 है ये DV एक्ट में. कंक्लूजन क्या क्या है इसमें? The protection order can cover not just physical but also financial and emotional aspects of the domestic violence. बिल्कुल ठीक है. अब आप सोचोगे कि भाई फाइनेंशियल फिजिकल समझ में आ गया. फिजिकल जो मार पिटाई और धन दौलत जो ले लिया वो चीज़. इमोशनल कैसे? उसको वो कॉल भी नहीं कर सकता. कॉल करके डरा धमका नहीं सकता. वो होता है इमोशनल डिस्ट्रेस. ठीक है ना. फिर है द मैजिस्ट्रेट हैज़ वाइड पावर टू रिस्ट्रिक्ट द रिस्पोंडेंट्स कंडक्ट टू सेफगार्ड द एग्रीड पर्सन एंड हर डिपेंडेंट. बिल्कुल ठीक है जी. ये 18 में क्लॉज डी में लिखा हुआ है ना.
अब दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे, बोथ फॉलो, सी इज द आंसर। This is 92. What is the maximum term of imprisonment prescribed under Section 31 of the Protection of Women from Domestic Violence Act for breach of protection order? 6 months, 1 year, 2 year, 3 year. It is 1 year. B is the answer. This is 93. According to Motor Vehicle Act, which factor determines the jurisdiction of the licensing authority in applying for driving license? The place where the applicant has held a bank account for more than a year, या फिर place where the applicant votes in local body election, या फिर place where applicant ordinarily resides or carry on business. सिंपल सी बात है, तो डी इसमें आंसर रहेगा। सेक्शन 8 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट देख सकते हैं इसके लिए आप। Next is 94. According to Motor Vehicle Act, what is the fixed amount of compensation payable in the event of death caused by motor vehicle accident under no fault liability? No fault liability में कितना है? 25,000, 50,000, 1 लाख या फिर 75? 50,000 रुपीज़। सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 में मेंशन किया हुआ है इन मोटर व्हीकल एक्ट। Next 95. Under Land Acquisition Act 1894, what is the minimum period that must elapse between the publication of notice and appearance of the person interested before the collector? Not less than 7, not less than 60 days, not less than 15 days, not less than 30 days. Not less than 15 days. C is the answer. Section ये 9 subsection 2 है Inland Acquisition Act 1894। मतलब नोटिस अब दिया है, उसके बीच में गैप होना चाहिए एटलीस्ट 15 दिन का, यानी भी कोई भी आके सेकंड डे आके वो जो है इंटरेस्ट दिखा देगा। नो, 15 डेज आपको वेट करना पड़ेगा। Next 96. After a government notification is issued for acquiring Mr. Mehta's farmland under Land Acquisition Act, he notices that the income from his crops steadily decreases until the authorities finally take decision. He approaches the court claiming compensation for this reduction in profit. According to the Act, what type of loss is compensable in such case? Loss due to falling land price in the market, या फिर ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ टेनेंट एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट इन नियरबाई एरिया, या फिर बोनाफाइड डिविनेशन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू एक्विजिशन प्रोसेस। डी इज द आंसर। सेक्शन 23 सिक्स्थली देख सकते हैं आप इसके लिए। नेक्स्ट 97. According to section 44A2 clause 1 of the income tax act, a person carrying on a business must maintain book of account if the income of business profession exceeds 1,20,000, 50,000, 5 lakh, 10 lakh. 1,20,000 rupees. A is the answer. Next is 98. Which type of allowance qualifies for deduction under section 16(2) of the income tax? House rent allowance granted by the private company, entertainment allowance granted by the government employees, transport allowance, या फिर leave travel allowance given for domestic travel. ये है entertainment allowance granted to the government employees. B is the answer. Next is 99. Under section 24A of Income Tax Act, what percentage of the annual value of an income from house property is allowed as standard deduction? 20, 40, 30, 50. कितना है? 30% है। C is the answer. Next is 100. Statement 1 है, under the Income Tax Act, a deduction equal to 30% of the annual value is allowed while computing income from house property. बिल्कुल ठीक है जी। Where a property has been acquired or constructed with the borrowed capital, the maximum deduction interest payable on the such capital is capped to lakh subject to condition है। ठीक है। सेक्शन 24 है ये, और ये है प्रोवाइजो 2। बोथ आर ट्रू, तो डी इसमें आंसर हो जाएगा। So friends, here we have discussed all the questions of All India Bar Examination 20 which was held in December 2025. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप जो है टाइम लिख दीजिए। जो भी टाइम आ रहा है वीडियो में वो आप लिख देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। एंड इफ़ इट नेसेसरी हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। वी ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु टेल अस आवर ड्रॉबैक्स एंड मिस्टेक्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो और भी अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज जस्ट अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।